Hello friends, this is last video for paper 1 MCQ. For MCQ it is the last video. For numericals we will upload more videos. Okay. The length of the minor arc KB of a circle is 1/4 of its circumference. See, I have drawn the very nice figure that explains 1/4. 1/4 yani uh, circumference is whole. So this is 1/4 part. All the arc I have drawn, they occupy 1/4 parts. So what does the question ask? The minor arc AB will be the angle subtended by the minor arc AB. See, कोई भी arc से angle जो subtend होगा वो कितना होगा तो that is 90. But if you want to do it by the method, so what I will tell you that it has four half parts, four parts, four equal parts. So four equal parts subtend 360 angle. See, the angle is 360. अगर पूरा circle ले लो, angle is 360. Then one part will form what angle? So 1 upon 4 into 360, and that will give you answer 90. 4 9s are 36. So that is the method if you want to do, but if you draw like this you will come to know. Okay, अगर board में question change करके पूछ रहे हैं, they just remove like this, they remove this one, and they ask that it divides in same two parts. So what angle it will form? So this is 180 angle. So you can solve it if they asked by changing something in this, by twisting the equation. But as of now answer is 90. Okay. द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ओके, स्फीयर का वॉल्यूम दे दिया हो, मैंने एक एमसीक्यू में बताया था, जिसका भी आंसर दे देते हैं उसका फॉर्मूला लगा दो, दैट इज द वे ऑफ गोइंग अहेड, उसमें से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ओके, सो 4/3 पाई आर क्यूब मैंने फॉर्मूला लगा दिया. नाउ दिस इज 36. 4/3. डू आई नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई? यस, यस. सो यस, सो मैंने क्या किया, पाई की वैल्यू नहीं रखी. क्यों नहीं रखी? बिकॉज पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. डू आई नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई? अगर दोनों साइड पाई नहीं है तो, अगर यहाँ पे पाई नहीं दिया होता मुझे रखना पड़ता, क्योंकि पाई पाई कैंसिल नहीं होता. यहाँ क्वेश्चन में 36 पाई दिया हुआ है, आई डिडंट शो दी पाई फर्स्ट. पाई दिया हुआ है तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. अगर रख देते हो तो गलती से, इट्स ओके, इट्स ओके, इट विल नॉट अफेक्ट द आंसर. ओके, नाउ पाई पाई कैंसल, राइट. नाउ 4 9s are 36, so it will be 9 3s are 27, and cube root of 27, so that will be 3. Now why 3? Because 3 times give 27, so cube root of 27 is 3. Now what is the diameter? My question is diameter, and I have got the answer of radius. Now you must be knowing what is diameter and radius. Then if you still don't know, let me explain it. See, any line segment which has one endpoint on the circle and another endpoint on the center, that is radius, वो radius बोलते हैं. Okay, and diameter is what, जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे और सेंटर में से पास होता है, यानी सेंटर में से पास होना जरूरी है. और इफ यू ऑब्जर्व दिस, इफ आई नेम इट ओ ए बी, देन डायमीटर जो है वो तो रेडियस से बना हुआ है, ओ ए ओ बी. सो ये आर मुझे मिल गया 3, तो आई विल डू 3 + 3 6, मुझे मिल जाएगा डायमीटर. सो माई डायमीटर इज 6. So correct answer is 6D. ओके, इन दिस एमसीक्यू किसका आंसर दे दिया है? राइट. ओके, आंसर ने दिया, बट किसका वॉल्यूम उसने आस्क पूछा है, तो द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा, तो नथिंग न्यू टू डू इन दैट. मैं सारे के सारे ऑप्शन देख रहा हूँ, सब में पाई है, पाई है, पाई है, पाई है, तो आई विल नॉट कीप द वैल्यू ऑफ पाई. ओके, सो नाउ आई विल 2/3, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, आर 3 टाइम. नाउ पाई अपॉन 1, 1.5 1.5 1.5 3 टाइम. ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, सो 1.5 2 जा 3, 1.5 डेढ़ और डेढ़ 3 होते हैं. 1.5 इज डेढ़, डेढ़ इंटू डेढ़ 3, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया. सो रिमेनिंग इज 1.5 1.5. 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225, उसमें से मैंने 2 पॉइंट निकाल दिए, 2.25. सो माय फाइनल आंसर इज 2.25 पाई. ओके, इन दिस it is a soap piece as shown in the figure is made up of cube. This is a cube. It is not, its diagram is not looking as if cube, but it is a cube. We have to assume that it is a cube. And hemisphere, this is hemisphere, semicircle, hemisphere. If the measure of total surface area of the cube का total surface area is A, the curved surface area of hemisphere is B, and the area of base, ये जो base है इतना area है, that's C. Then
what is the true for the following? Okay, see, let me draw a square. Let me draw square to explain something. That's Let me draw it colorful. Okay, this is a square. ठीक है? Okay, उसके ऊपर अगर मैं hemisphere. Okay, let me draw it on rectangle on that. So rectangle will not be better. I think let me draw the hemisphere only. Hemisphere only. Okay. So uh, yeah. So that highlight this part. Which color will suit on this? I think red. This part. I think I must use a pen. Red, green pen. See this part. This part. This part is repeated. Why repeated? Let me explain. अगर इसको उल्टा हम इसके ऊपर रख रहे हैं तो इसका जो पूरा एरिया है उसमें भी ये पार्ट आ गया है, ठीक है। इसका जो स्क्वायर का एरिया उसमें ये पार्ट तो आ ही गया है, जो ग्रीन पार्ट में दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसको उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। अगर ग्लास को टेबल पे रखेंगे तो टेबल का जो ये ऐसे ग्लास को टेबल पे रखेंगे तो ये अगर टेबल है तो उस पे इतना सर्कुलर पार्ट तो वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो अगर मैं एरिया ऑफ अ टेबल निकालता हूं तो उसमें ये पार्ट तो आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे तो ए प्लस ये हेमिस्फीयर का एरिया बी, और ये जो बेस है उसका वो तो रिपीट हो रहा है, वो ए में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो मुझे वो नहीं कैलकुलेट करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सब्ट्रैक्ट इट। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। टेबल पे सुनेंगे ये एरिया तो रिपीट हो रहा है, तो अगर इसको हम ए बोलते हैं, पूरे को ए बोलते हैं, तो इसमें तो ऑलरेडी ये सर्कुलर एरिया आ चुका है। तो उसने इसमें क्या बोला है कि ये जो बेस है दैट दैट सी द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो ये हेमिस्फीयर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसका बेस तो इसका ए में बेस आ गया है, प्लस मैं बी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं प्लस सी करूंगा तो बेस दूसरी बार रिपीट हो जाएगा, तो मैं इसमें से बेस माइनस कर रहा हूँ। सो आंसर इज ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि ए ये जो सी है ऑलरेडी इंक्लूडेड इन स्क्वायर, तो एक बार उसमें आ गया है। सो आंसर इज ए प्लस बी माइनस सी। ओके, नाउ the radii and the heights of a cylinder and a cone are equal. सिलिंडर और कोन दोनों के रेडियस हाइट दोनों सेम है। देन द उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ठीक है। मैं दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इसमें क्या क्या कैंसिल होगा, तो दोनों के रेडियस सेम है, रेडियस रेडियस उड़ा दो। दोनों के रेडियस सेम है, रेडियस रेडियस को कैंसिल कर दो। दोनों की हाइट सेम है, उस हाइट हाइट कैंसिल कर दो। दोनों में से पाई पाई कैंसिल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, उसको भी कैंसिल कर दो, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट विल रिमेन, वन अपॉन से ऊपर कुछ नहीं है तो ओके। अभी ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा। सो माय आंसर इज 3 जैम 1। ओके, z is equal to 24, x bar is equal to 18, z is equal to 24, x bar is equal to 18, then find m. Okay, I have standard formula that is used in most of the MCQ of the 15th chapter. So that's z is equal to 3m minus 2x bar, that I know. So here मैंने value रख दी. Now I put the value here. See, this is the information I took from the question. In the question में से information लेके I just kept it here. Then I started doing ahead. Z is equal to 3m minus 2x bar. That's 36. 24 plus 36. That's 60. 60 upon 3, 20. So m is equal to median is equal to 20. So they have asked the median. So my answer is 20. Let's go on next MCQ. Okay. Now what is model class? How can you find the model class? So for to find model class, you have to see कि कौन से क्लास में ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो एज आई लुक ऑन द टेबल, आई थिंक 17 इज द मैक्सिमम एमसीक्यू, और कौन से क्लास में, दैट इज इन 30 to 40 क्लास। सो माय मॉडल क्लास इज 30 to 40। Okay, in this I have this information sigma fi xi and sigma fi and x bar. So x bar का formula मैंने लगा दिया, see 75 upon 12, and मैंने उसका divide कर दिया। Divide if you don't know, let me show it to you how to divide the in fraction. 75 divided by 12, 12 5 are 60, sorry 12 6 are 72, right?
now 3 है और टेबल के टेबल में नहीं आएगा because it is a smaller number, so I will put point here 12 2s are 24. Let me continue here so you can look at this. now 6 एक जीरो फ्री में मिलता है, एक जीरो मेरे अगर एक जीरो 60 भी अगर 12 के टेबल में नहीं आता तो व्हाट आई विल डू, पहले मुझे यहाँ जीरो रखना है फिर दूसरा जीरो, सो ये तो हो गया, सो 12 5 60, सो आंसर इज 6.25. Okay. The die is rolled. If the die is rolled once, then the probability of having prime number. Okay. See, die पे कौन से नंबर होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6. Okay. उसमें से प्राइम नंबर यानी क्या? I explained in the first video. प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर है. फॉर एग्जाम्पल 11. 11 हैज टू फैक्टर, वो 1 के टेबल में आता है. फैक्टर यानी वो किस किसके टेबल में आता है? 11 के टेबल में आता है. जैसे 17, जैसे 23. तो 1 से 6 नंबर डाय पे होते हैं. उसमें प्राइम नंबर कौन से, तो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. ये प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, राइट, बिकॉज इट इज ओनली वन फैक्टर. सो दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज नॉट प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर. सो 3 प्राइम नंबर. तो रिक्वायर्ड रिजल्ट मुझे मिले 1 2 3. सो दैट्स 3. टोटल रिजल्ट 6. 3 2 are 6. So my answer is 1/2. So correct answer is D, 1/2. Let's go next. सी 100 मार्क्स के पेपर में 101 मार्क्स आने की संभावना, और 101 मार्क्स आएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट. ऑप्शन का भले करेक्ट लिखा हो लेकिन ऑप्शन मार्क्स आर नॉट कैलकुलेटेड, सो ऑप्शन के साथ सब सच लिखो तो भी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, सो दैट्स 0. ઓકે, એક સિક્કાને 3 વખત ઉછાળવામાં આવે છે, ત્રણેય વખતે છાપ પડે. ઓકે, હવે સોરી, ઇંગ્લિશમાં એક્સપ્લેન ચલ रहा है. An unbiased coin is tossed thrice, the probability of receiving head all 3 times. ओके, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी मैं एक ऐसा वेव दिखा रहा हूँ कि जिससे प्रोबेबिलिटी रिपीट नहीं होगी. एक भी प्रोबेबिलिटी रिपीट नहीं होगी, रिपीट होगी तो आंसर रॉन्ग आएगा. ओके, तीनों तीन इंच लिख दो, लास्ट में टी कर दो, बीच में टी कर दो, शुरुआत में टी कर दो. गॉट इट? फिर से दिखा रहा हूँ. लेट्स गो नेक्स्ट. तीनों तीन एच लिख दो, लास्ट में टी, बीच में टी, पहले टी. तीनों तीन टी लिख दो, लास्ट में एच, बीच में एच, शुरुआत में एच, लास्ट में एच, बीच में एच, शुरुआत में एच. ये सिस्टम में जाओगे यू विल गेट टोटल प्रोबेबिलिटी 8. उसमें तीनों बार एच आते हैं, हेड आते हैं. ऐसा कितनी बार होता है? आई थिंक इट हैपेंस ओनली वन टाइम. सो माय आंसर इज, माय रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड टोटल प्रोबेबिलिटी इज 8. दैट्स 1/8 इज माय करेक्ट आंसर. आई थिंक दिस सिस्टम इज वेरी वेरी नाइस. लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन. क्या करना है? सबसे पहले एच, लास्ट टी, बीच में टी, शुरुआत में टी, ऑल टी, लास्ट में एच, बीच में एच, शुरुआत में एच. दैट्स इट. यू कैन write all the probabilities without making any mistake. Okay, so Hirani tuition, I told in all the videos that it has very very nice application for MCQ to obtain better marks in part A of the examination. So you can download it from www.hirantuitions.com study material and you can practice it. Try it once, whether you like it or you don't like it, but you just try it once. It is very very amazing application. Now we will move on the sums that we will understand in the next video. Thanks for watching.